खड़े हुए देख रही हूँ, उन सभी से मेरा पुनः अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अतिथिगण अनावरण के कार्यक्रम के संबंध में प्रस्थान करते हुए रीवा के इतिहास के एक बहुप्रतीक्षित क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अविस्मरणीय क्षण गणमान्य अतिथियों के द्वारा उद्घाटन पत्रिका इनॉग्रल स्टोन का अनावरण करते हुए इस भव्य इमारत का उद्घाटन किया जा रहा है। आज के इस पावन अवसर पर जब हम सभी ऋग्वेद के अध्याय 1 मंत्र संख्या 89 का स्मरण करते हैं, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात हम सभी दिशाओं से ऐसे विचारों की कामना करते हैं जो हमें प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें और हमारी चेतना की वृद्धि करें। यह वैदिक प्रार्थना हमारे आयोजन की मूल भावना को प्रतिध्वनित करती है कि यह सभा केवल उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसी विचारधारा का संगम है जहां विविध दिशाओं से उत्कृष्ट चिंतन और रचनात्मकता हमारे बीच प्रवाहित हो।
अतिथिगण नवीन भवन का भ्रमण करते हुए जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से देखा है, यह भवन 24 माह के अथक प्रयासों से जो निर्मित किया गया है, 3 बिल्डिंगों का समागम है, जिसमें प्रथम बिल्डिंग मेन बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग सर्विस बिल्डिंग है और तीसरी बिल्डिंग बार बिल्डिंग के रूप में तैयार की गई है। इन तीनों बिल्डिंगों में विभिन्न सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं, जिसमें मुख्यतः 40 न्यायालय वर्तमान में बनाए गए हैं और ऐसे ही अन्य सुविधाओं के साथ इसमें अधिवक्ता गण के लिए भी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। से कंडक्ट कर लीजिए, ये सीएम साहब का कार्यक्रम कुछ क्षणों में ही शुरू होने वाला है। आप सभी गरिमापूर्ण वातावरण में अनुशासित होकर जैसे अभी तक बैठे रहे हैं, वैसे ही सहयोग की अपेक्षा है। अपना सहयोग बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। बहुत जल्द हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी होंगे जिसकी प्रतीक्षा में विगत कुछ घंटों से हम यहाँ हैं। आप सभी का पुनः धन्यवाद। ऐसे ही शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बने रहिए। हेलो हेलो पीछे जो हेलो 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 पीछे जो
जो अतिथिगण पीछे खड़े हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अतिथिगण मंच की ओर पधार रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वह बहुप्रतीक्षित क्षण हमारे सामने होगा जिसके लिए हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आप सभी से पुनः अनुरोध है, कृपया अपना मोबाइल फोन या स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर कर लें। With the permission of dais, may I commence the proceedings of this program? Dignitaries on the dais, Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable the Chief Minister, State of Madhya Pradesh, My Lord Shri Justice Suryakant, Honorable Judge, Supreme Court of India, My Lord Shri Justice J.K. Maheshwari, Honorable Judge, Supreme Court of India, My Lord Shri Justice S.C. Sharma, Honorable Judge, Supreme Court of India, My Lord Shri Justice Suresh Kumar Kath, Honorable the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Shri Rajendra Shukla, Honorable Deputy Chief Minister, State of Madhya Pradesh, My Lord Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Honorable Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, My Lord Shri Justice Sanjay Dwivedi, Honorable Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Portfolio Judge, District Rewa, My Lord Shri Justice Vishal Mishra, Honorable Judge, High Court of Madhya Pradesh, Honorable Judges of High Court of Madhya Pradesh, Honorable former Judges of High Court of Madhya Pradesh, respected Registrar General, respected Principal Secretary Law, Officers of Registry, respected Principal District and Sessions Judge, Rewa, Satna, Katni and Sidi, learned senior advocates, learned members of State Bar Council, President and Office Bureaus of District Bar Association, Rewa, learned advocates, learned judges, officers from District Administration and Police, officers of Public Works Department, esteemed dignitaries present in person, members of print and electronic media, virtual attendees, ladies and gentlemen, a very warm greetings to everyone. Namaskar. Rewa, renowned as the land of white tigers and once the seat of Baghel dynasty, holds a distinguished place in India's judicial history, from housing its own High Court to serving as a principal seat of Vindhya Pradesh High Court and evolving into a major civil district. Rewa stands as a proud symbol of legal heritage, continuity and institutional strength in Madhya Pradesh. It is a great honor for me, Anu Singh, District and Additional Session Judge Rewa, to heartily welcome everyone who are part of this historic occasion, inauguration of new District Court Complex in Rewa. As we proceed, it is my distinct pleasure to begin this event with the felicitation of our distinguished guests
whose presence elevates this gathering to new heights. I humbly request Shri Rakesh Mohan Pradhan, Principal District and Sessions Judge Rewa, to kindly extend a warm welcome to Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, State of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you very much, sir. I request Shri Dharminder Singh, Registrar General, High Court of Madhya Pradesh, to extend a gracious welcome to my Lord Honorable Shri Justice Suryakant, Judge Supreme Court of India, by presenting a bouquet. Sincere thanks, sir. Here I request Shri N.P. Singh, Principal Secretary Law, Government of Madhya Pradesh, to extend a cordial welcome to my Lord Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge Supreme Court of India, by offering a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Ratnesh Chandra Singh Bisin, Principal District and Sessions Judge Satna, to extend a warm welcome to my Lord Honorable Shri Justice S.C. Sharma, Judge, Supreme Court of India, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Jitendra Kumar Sharma, Principal District and Sessions Judge Katni, to extend a respectful welcome to my Lord Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kat, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri B.S. Jamod, Divisional Commissioner, Rewa, to extend a warm welcome to Shri Rajendra Shukla, Honorable Deputy Chief Minister, by offering a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Gaurav Rajput, Inspector General of Police, Rewa Zone, to extend a respectful welcome to my Lord Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Srimati Pratibha Pal, Collector Rewa, to extend a respectful welcome to my Lord Shri Justice Sanjay Dwivedi, Honorable Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Portfolio Judge Rewa, by presenting a bouquet. Thank you, ma'am. I now request Shri Saligram Baghel, Engineer-in-Chief, PWD Buildings, to extend a respectful welcome to my Lord Honorable Shri Justice Vishal Mishra, Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Vivek Singh, Superintendent of Police, Rewa, to extend a respectful welcome to Shri Prashant Singh, Advocate General, State of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, sir. On this auspicious occasion, one of the vital pillars of our justice system, our esteemed advocates, also wishes to extend a heartfelt welcome to our distinguished guest. In this regard, I respectfully invite Shri Shivendra Upadhyay, Member, State Bar Council, to graciously welcome Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you very much, sir. I now request Shri Akhand Pratap Singh, Member, State Bar Council, to extend a gracious welcome to my Lord Honorable Shri Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Rajendra Pandey, President of the District Bar Association, Rewa, to extend a cordial welcome to my Lord Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, by offering a bouquet.
Thank you, sir. I now request Shri Ghanshyam Singh, ex-member State Bar Council, to extend a warm welcome to my Lord Honorable Shri Justice S.C. Sharma, Judge Supreme Court of India, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Senior Advocate Shri Sushil Tiwari to extend a respectful welcome to my Lord Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaid, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Virendra Singh Baghel, ex-President, District Bar Association, Rewa, to extend a warm welcome to Shri Rajendra Shukla, Honorable the Deputy Chief Minister, by offering a bouquet. Thank you, sir. I now request Shri Virendra Mishra, ex-member, State Bar Council, to extend a respectful welcome to my Lord Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. I now request Shri Lakshmi Narayan Mishra, ex-President, District Bar Association, to extend a respectful welcome to my Lord Honorable Shri Justice Sanjay Dwivedi, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Portfolio Judge, by presenting a bouquet. Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, sir. I now request Srimati Shashi Prabha Singh, Senior Most Lady Advocate, to extend a respectful welcome to Shri Prashant Singh, Advocate General, State of Madhya Pradesh, by presenting a bouquet. Thank you, ma'am. To proceed further, I request my Lord Shri Justice Sanjay Dwivedi, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Portfolio Judge, District Rewa, to kindly deliver welcome address. I respect. Honorable Dr. Shri Mohan Yadav, Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Shri Rajendra Shukla, Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Shri Justice Surkant, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, Honorable Justice S.C. Sharma, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaid, Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, Shri Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, Madhya Pradesh High Court, Shri Vishal Mishra, Judge, MP High Court, Shri Prashant Singh, Advocate General of Madhya Pradesh, my esteemed brother judges of the High Court of Madhya Pradesh, respected member of the Bar, District Judge Rewa, and officers of the subordinate judiciary and administration, distinguished guests, ladies and gentlemen.
namaskar and very warm welcome to each one of you. It is with immense pride and a deep sense of responsibility that I stand before you today on this momentous occasion, the inauguration of new district court complex in Rewa. As the portfolio judge of Rewa, I feel especially privileged to extend my heartfelt welcome to our honorable dignitaries whose gracious presence has elevated this event into a truly historical one. The judiciary is bedrock of our democratic structure. It is in the courtrooms that the promise of justice comes alive. The inauguration of this modern and well-equipped complex is not just a matter of infrastructure. It is a reaffirmation of our collective commitments of ensuring access to justice for all. It stands as a symbol of progress, of our dedication towards improving the conditions under which the law is administered, and of our resolve to support our judges, lawyers, staff, and litigants with an environment that reflects the dignity of the legal process. I take this opportunity to express my sincere gratitude to the government of Madhya Pradesh for its unwavering support and vision, and to Honorable Chief Minister Dr. Shri Mohan Yadav and Honorable Deputy Chief Minister Shri Rajendra Shukla for their steadfast commitment to the cause of justice delivery. Your presence today is a testament to value of our state places on a robust and efficient judicial system. I am deeply honored to welcome honorable judges of the Supreme Court of India, Justice Suresh Kumar Kaith, Justice Surkant, Justice J.K. Maheshwari, and Justice H.C. Sharma, whose presence here inspires and strengthens the entire judicial fraternity. We are enriched by your wisdom, and your support will remain a guiding light for the judicial officers and legal practitioners of Rewa. I extend my warmest welcome to Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaith, Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, under whose leadership the Madhya Pradesh judiciary continues to strive towards greater transparency, efficiency, and accountability. Sir, your vision and encouragement are vital pillars in our journey forward. To my learned brother and sister judges of the Madhya Pradesh High Court, I express my sincere appreciation for your continued cooperation and support. Your presence today embodies the solidarity and unity that strengthens our institution. This complex is more than bricks and walls. It is a place where the hopes of the common citizen meet the shield of Constitution. It will stand as a center of fairness, dignity, and respect for rights. May it serve as a beacon of justice for generations to come. Once again, I thank you all for joining us on this landmark occasion. I look forward to the collective efforts that will make this institution a paragon of judicial excellence. Jai Hind. Lord, this structure stands as a testament to the hard work and dedication not only of the judiciary, also of the advocates, Public Works Department, and spirited citizens of Rewa. To represent the citizens of India, especially Rewa, we are honored by the presence of Shri Rajendra Shukla, Honorable Deputy Chief Minister, a proud son of this soil. I request Shri Rajendra Shukla, Honorable Deputy Chief Minister, to kindly extend a warm welcome to our dignitaries and address this august gathering. आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदरणीय सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदरणीय जे.के. महेश्वरी साहब, आदरणीय जस्टिस एस.सी. शर्मा जी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मध्य प्रदेश आदरणीय सुरेश कैथ जी, एडमिनिस्ट्रेटिव जज आदरणीय संजीव सचदेवा जी,
जस्टिस हाई कोर्ट आदरणीय संजय द्विवेदी जी, एडवोकेट जनरल आदरणीय प्रशांत सिंह जी, पीएस लॉ आदरणीय एमपी सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, हमारे अधिवक्ता संघ के बहुत ही वरिष्ठ लोग जिन्होंने अभी अतिथियों का स्वागत किया है, आदरणीय शिवेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय अखंड प्रताप सिंह जी, जिला बार एसोसिएशन के 4 बार से लगातार अध्यक्ष हो रहे आदरणीय राजेंद्र पांडे जी, आदरणीय घनश्याम सिंह जी, आदरणीय सुशील तिवारी जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय ओझा जी, डीजे आदरणीय प्रधान साहब, यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज का ये पल ऐतिहासिक पल है। एक और भव्य और शानदार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग है, तो वहीं दूसरी ओर इस मंच में ऐसे विभूति का एकत्रीकरण है जो इस उद्घाटन के समारोह को बहुत लंबे समय तक याद रखेगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। यह सफेद शेरों की धरती है। दुनिया में जहां कहीं सफेद शेर हैं, वो यहां पर पाए गए सबसे पहले सफेद शेर मोहन के ही वंशज हैं, और इसलिए यहां पर एक शानदार व्हाइट टाइगर सफारी बनी है। 2016 में उसका उद्घाटन हुआ। पहले भी हम लोग कहते थे कि सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन डरते रहते थे कोई पूछ न दे कि कहाँ है सफेद शेर, क्योंकि 46 सालों के बाद सफेद शेर वापस आया, और इसलिए आज हम डंके की चोट पर आप सबकी ओर से सफेद शेरों की धरती पर आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मैं अभी श्रद्धेय सूर्यकांत जी कह रहे थे कि बहुत ही शानदार भवन बना है, तो मैंने कहा कि ये रीवा और विंध्य का जो ड्यू है वो आज प्राप्त हुआ है। ये बहुत पोटेंशियल एरिया है। 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है हमारे यहाँ। जितना लाइमस्टोन हमारे यहाँ है देश में किसी कोने में और दूसरी जगह नहीं है। 15,000 मेगावाट के कोयले से बिजली बनती है हमारे यहाँ सिंगरौली के इलाके में, शहडोल के इलाके में। जितना कोयला हमारे यहाँ है देश में किसी और क्षेत्र में नहीं है। उसके बावजूद हम उतना विकास नहीं कर सके थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर, एयरपोर्ट बनाकर, रेलवे की लाइन सिंगरौली तक पहुंच जाए, इसका काम, शानदार 4 लेन की सड़कों ने आज विंध्य क्षेत्र को बहुत तेजी से विकास की गति दिशा में बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। अब हम ये नहीं कहते, अब जमाना कहता है कि आपका रीवा, आपका विंध्य तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसलिए आज ये जो भवन बना है ये वास्तव में 4 चांद लगाने वाली बात है। हमारे यहाँ एक स्टेट ऑफ बिल्डिंग आपका ये जिला न्यायालय, मैं महेश्वरी जी को भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए कि इसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन को फाइनल करने में एमपी हाई कोर्ट ने बहुत गंभीरता से उसको ध्यान दिया, और आज वो एक अच्छी क्वालिटी का बिल्डिंग यहाँ पर बन के तैयार हुई है। हमारे अधिवक्ता संघ और अधिवक्ताओं के चेहरे में आज जो प्रसन्नता दिख रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से ये न्याय के क्षेत्र में ये भवन आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत राहत देने का काम करेगा। अधिवक्ता संघ यहाँ पर जनार्दन जी बैठे हैं। जो कोर्ट बार बिल्डिंग बनी है उसमें फर्नीचर का मुद्दा पांडे जी ने और अधिवक्ता संघ की टीम ने हमको बताया था। हम लोगों ने तो बिना देरी किए 30-30 लाख रुपए मंजूर कर दिए, सांसद जी ने भी, हमने भी, लेकिन नियम ऐसा था कि इस विधायक और सांसद ने से वो पैसा देने में थोड़ा परेशानी है, लेकिन आने वाले दिनों में उसका क्या समाधान हो सकता है इस पर जरूर हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी हमने इस बात को डाला है। हमारे विधायक आदरणीय देवराज सिंह जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, उनका भी स्वागत है। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और निश्चित रूप से आप सबका आना इस क्षेत्र के में, क्योंकि लोकतंत्र में 4 ही पिलर्स हैं,
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, तो ये चारों पिलर्स जब सही दिशा में कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ते हैं तो लोकतंत्र को वरदान बनाना फिर आसान हो जाता है। निश्चित रूप से विंध्य के लिए और रीवा के लिए जितना ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने रखा, जितना ध्यान हाई कोर्ट ने रखा, वास्तव में इसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये आपका स्नेह जो इस क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है और एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिली है, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। और पूरे रीवा क्षेत्र की ओर से, पूरे विंध्य क्षेत्र की ओर से जो विभूतियां मंच पर उपस्थित हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. We are delighted to have amongst us Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, renowned for his significant contributions for advancing technology in the administration of justice. Taking a step ahead, I request my Lord Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, to kindly address us. Honorable the Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, Justice Suryakant, Judge Supreme Court of India, Justice J.K. Maheshwari, Judge Supreme Court of India, Justice Satish Sharma, Judge Supreme Court of India, Chief Justice Suresh Kaith, Justice Sanjay Dwivedi, Portfolio Judge, Justice Vishal Mishra, Chairman of the Infrastructure Committee, Shri Rajendra Shukla, Deputy Chief Minister, Shri Prashant Singh, Advocate General, Shri Rakesh Pradhan, Principal District Judge Rewa, Shri Dharmendra Rathore, Registrar General Madhya Pradesh, members of the Judiciary, members of the Bar, distinguished guests. मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस जगह पे रीवा में मेरे को आने का मौका मिला। मैंने मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं नया हूँ तो काफ़ी कुछ सुना था, काफ़ी कुछ देखा था, लेकिन मेरे को यहाँ आके पहली बारी पता लगा कि रीवा एक ऐसा जगह है, ऐसा स्टेट है जहाँ पे इसका लीगल सिस्टम हमारे भारत के संविधान से भी पुराना है। 1948 में दो बुंदेलखंड और भागेलखंड रीजन को मिला के एक विंध्या प्रदेश बना, जिसका खुद का एक हाईकोर्ट था और उसकी अपील यहाँ के महाराजा को जाती थी। और इसका लीगल सिस्टम इतना गहरा है कि यहाँ के लोग हर जगह के लिए हर चीज को लीगल सिस्टम के लीगल तौर से सुलझाते थे। और यहाँ का विंध्य प्रदेश हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस 12 अगस्त 1948 को पारित हुआ, जिसमें यहाँ एक हाई कोर्ट सेटअप हुई और हाई कोर्ट नावगांव में बनी थी, जिसका विंध्य प्रदेश की प्रिंसिपल सीट रीवा में थी और बेंच इसकी एक नावगांव में थी। तो एक पहला हाई कोर्ट था इस देश का जहां एक डिस्ट्रिक्ट रीवा में और डिस्ट्रिक्ट नावगांव में एक हाई कोर्ट बना। और इसके पहले चीफ जस्टिस पीसी मोगा थे। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पारित हुआ, उसके बाद यहाँ पे जुडिशियल कमिश्नर की कोर्ट एस्टैब्लिश हुई रीवा में, जो भोपाल और विंध्य प्रदेश कोर्ट्स एक्ट के अंडर पारित हुई। और इस कोर्ट की हाईएस्ट अथॉरिटी सारे हाई कोर्ट्स के पावर थे, इवन 226 की पावर जो आज हाई कोर्ट में है उस समय यहाँ प्रिंसिपल जुडिशियल कमिश्नर के पास होती थी। 1955 में यहाँ पे सेशन डिस्ट्रिक्ट और एक सिविल डिस्ट्रिक्ट बनी, जो सिद्धि, सिंगरौली, शाहडोल, उमरिया, अन्नपूर्णा और सतना डिस्ट्रिक्ट्स को देखती थी। और ये बाद में रीवा 21 डिस्ट्रिक्ट्स, मध्य प्रदेश की 21 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक बना। तो रीवा के इतिहास ने हमें बहुत कुछ कानून में सिखाया है। और मेरे ख्याल से भी ये जो बिल्डिंग हमने इनॉग्रेशन हुई, ये हमारा इसका सपना जस्टिस महेश्वरी ने देखा था, जिसको बड़े काबिल हमारे दो जज, जो जस्टिस द्विवेदी, जस्टिस विशाल मित्रा और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इसको पूरा किया। और ये मध्य प्रदेश का प्रोबेबली डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे अच्छा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और जैसे रीवा ने हमारे लीगल सिस्टम के लिए एक मिसाल कायम करी थी, वैसे ही आई एम श्योर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक मिसाल बनेगी कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब चाहेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट से और हमारे चीफ जस्टिस से कि हमें भी ऐसा ही कोर्ट मिले ताकि लोगों को न्याय मिल सके। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, my Lord. We are blessed with the presence of Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaid, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh. My Lord adorned the bench at Delhi High Court in 2008, served in Telangana High Court, and was appointed as the 28th Chief Justice of Madhya Pradesh in 2024. Known for his legal acumen and commitment to justice, he now leads the Madhya Pradesh judiciary with vision and integrity. Now it is my honor to request my Lord Honorable Chief Justice Suresh Kumar Kaid, Honorable the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, to share his valuable thoughts with us. इस प्रदेश के लाडले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री जस्टिस सूर्यकांत जी, माननीय श्री जस्टिस जितेंद्र महेश्वरी जी, माननीय श्री जस्टिस सतीश शर्मा जी, माय colleagues on the dais, distinguished guests, जुडिशियल ऑफिसर्स, इस डिस्ट्रिक्ट की जनता और पूरे मध्य भारत की जनता जो इसको आज देख रही है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी है आपकी। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी आज तक कम से कम 30 के करीब बिल्डिंग ये इनॉग्रेट कर चुके हैं, जो तैयार बिल्डिंग है। और 30 के करीब बिल्डिंग का मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से जुडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रख रही है। मेरे से पहले बनी है, ये बात सही है, लेकिन उनको एक्सपेडाइट करके और चीफ मिनिस्टर का, इनकी सरकार का योगदान जो मिला है, उससे ये हुआ कि सब के सब ये आज आप जो देख रहे हैं रेवा की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत। हमारे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बोला ऑफ द रिकॉर्ड कि हमने अभी तक इतनी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग नहीं देखी। सर, मैं बताना चाहता हूं कि ये पूरी लैंड जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है 18 एकड़ है और अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ इसमें लगे हैं पैसा। इसमें 40 कोर्ट रूम हैं, जजेस के चैम्बर, कॉन्फ्रेंस हॉल और बाकी जो फैसिलिटी, और बार बिल्डिंग जो बनी है बार एसोसिएशन की, जो एडवोकेट्स की, उसमें 296 कैबिन जो 592 एडवोकेट्स को अकोमोडेट करेगी। और इसके अलावा जो सिटिंग एरिया है वो 750 एडवोकेट्स को अकोमोडेट करेगा। तो एडवोकेट्स को भी पूरी तरह से उनको स्थान मिला है यहाँ पे, और वो एक अपने डिग्निफाइड वे में अपना प्रोफेशन कर सकते हैं। ये जैसे मैंने अपनी बात स्टार्ट करी कि आपके लाडले चीफ मिनिस्टर, उनके बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था, लेकिन एक ये भी है कि हमारे पास भी एक बहुत लाडले हैं जो जुडिशरी के, और आपके मध्य प्रदेश से ही जैसे जेके महेश्वरी, जो हर छोटी से छोटी चीज में भी, लोग तो कहते हैं उसको दखलंदाजी करते हैं, पर वो दखलंदाजी पॉजिटिव साइड की है। हर चीज को देखते हैं कि इसमें कोई कमी तो नहीं है, उसका अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सजेशन भी देते हैं। जस्टिस सतीश शर्मा जी हर बात चीज को पूछते रहते हैं, जब भी कुछ हुआ उसमें कुछ भी सुधार की गुंजाइश होगी तो वो समय समय पर हमें कुछ ना कुछ सुझाव देते रहते हैं। इन दोनों की वजह से मुझे आज तक किसी भी इशू पे इस मध्य प्रदेश में आने के बाद कभी कोई दिक्कत हुई नहीं। जस्टिस सूर्यकांत, मेरा सौभाग्य है यहाँ पे आए। जस्टिस सूर्यकांत वो पर्सनालिटी हैं, ये बात अलग है कि हमारी स्टेट से है, हरियाणा से, पर इनकी जो खास बात, जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में अगर ये किस नाम से जाने जाते हैं, इनको कहते हैं कि ये मनसा देवी है। वहाँ एक वैष्णो देवी है, एक मनसा देवी। तो
तो मनसा देवी जो चंडीगढ़ में क्यों कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर किसी केस में बनता है केस तो वहां से खाली नहीं आएगा। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में यहाँ पे आई और इस रेवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया। ये आपके लिए और हमारे लिए सबकी सौभाग्य की बात है। आपके लोकल नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला जी, हमारी सेकंड मुलाकात है और ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, पूरी स्टेट का, हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, एडवोकेट्स का, आज भी जो चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ से और जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस सतीश शर्मा, ये सब के सब वहाँ जबलपुर में उद्घाटन करके आए हैं एडवोकेट्स के चैम्बर का, बिल्डिंग का पूरा, और जिसमें कम से कम हम 500 एडवोकेट्स के लिए वो कैबिन और उनका बैठने का उसमें अरेंजमेंट है। इसमें एक में आप चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में हैं और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। मैं एक आपके नॉलेज में सर लेके आना चाहता हूं सबकी कि यहाँ 2024 में, ईयर 2024, 1,57,908 नए केसेस फाइल हुए और हमने सब कोशिश करके पेंडेंसी जो इंक्रीज हुई 4,67,185 से 4,86,036 लास्ट तक 2024 में ये पेंडेंसी रही। अब इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं कि यहाँ के जजेस काम नहीं करते, यहाँ केसेस बहुत ज्यादा है और जजेस कम है। अब मैं कुछ दूसरे हाई कोर्ट्स की बात करूंगा। जैसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो जजेस की स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ 85 है, 85, और पेंडेंसी कितनी है उनकी 4,31,000। कलकत्ता में सैंक्शन स्ट्रेंथ जजेस के 72 और पेंडेंसी कितनी 2 लाख। दिल्ली हाई कोर्ट जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ 60 और पेंडेंसी 1,27,000। इवन मद्रास हाई कोर्ट में भी पेंडेंसी जो है 5,16,000 है और जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 75। अब मध्य प्रदेश पे आइए, जहां पेंडेंसी 4,78,000 पेंडेंसी है मध्य प्रदेश की, सैंक्शन स्ट्रेंथ है सिर्फ 53। और इसलिए हमने 32 जजेस का प्रपोजल भेजा और उसको करने का, इंक्रीज इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 85 करने का, कि हमारे पास 85 अगर जज होंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में तो इतनी पेंडेंसी नहीं होगी जिसकी वजह से लोगों को बार बार कोर्टों में चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट, आपके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, 2-3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, इनका रोल है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पहले क्लियर करेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा। तो मेरी उम्मीद ये है कि आने वाले समय में, इसी साल में के एंड तक ये जो स्ट्रेंथ है हमारी 53 से 53 से 85 हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका को मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी गर्मी में समय निकाल के यहाँ पे आए और इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई। और आप सब जो डिग्निटरीज बैठे हैं, इतने शेड्यूल अपना टाइट, जो सुबह की फ्लाइट से आए और आज रात तक सब फंक्शन करने के बाद रात तक दिल्ली जाएंगे, अपना काम छोड़ के आए हैं, क्योंकि ये जो छुट्टी है सैटरडे संडे हॉलीडे, इन्हीं में जो जजमेंट रिजर्व होते हैं, जो लिखने होते हैं, यही वो टाइम है। तो जो आज ये आए हैं यहाँ पे,
इनको किसी और दिन ना डबल काम करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो आप सब की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। Thank you, my Lord. We are also honored with the presence of Honorable Shri Justice S.C. Sharma, Judge, Supreme Court of India, a proud son of Madhya Pradesh. My Lord commenced his judicial journey at the High Court of Madhya Pradesh in 2008 and later served as Chief Justice of Telangana and Delhi High Courts before being elevated to the Supreme Court of India in the year 2023. Now it is my honor to request my Lord Honorable Shri Justice S.C. Sharma, Judge, Supreme Court of India, to bless us with his kind words. Shri Mohan Yadav ji, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, Brother Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, Brother Justice Suresh Kumar Kaith, Chief Justice Madhya Pradesh High Court, Shri Sanjeev Sachdeva, Justice Sanjeev Sachdeva, Justice Sanjay Dwivedi, Justice Vishal Mishra, Honorable Shri Rajendra Shukla, Deputy Chief Minister, Shri Akhand Pratap Singh, Bar Council of MP, Advocate General Shri Prashant Singh ji, Additional Advocate General Shri Bharat Singh ji, IG of Police Gaurav Rajput, Pratibha Pal, Collector Rewa, Shri S.C. Verma, Chief Engineer, who is the man behind this project, President Rajendra Pandey ji, Senior Advocates, and all who are present today. वैसे तो मैं अपनी स्पीच अंग्रेजी में बना के लाया था, लेकिन मुझे मेरे भाई जितेंद्र माहेश्वरी जी ने बोला कि आप अपनी स्पीच हिंदी में दीजिए। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, आप सबका अभिवादन। मैं सर्वप्रथम पार्थ सिंह जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जो आज हमारे बीच एक दुर्घटनावश नहीं है। वो एक उभरते हुए अधिवक्ता थे, लेकिन इस काल चक्र में एक दुर्घटना हुई और वो हमारे बीच नहीं है, तो मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि। रीवा का इतिहास विधि के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। जब मैंने 1984 में वकालत की पढ़ाई पूरी करी और जबलपुर आया, मेरे पिता कुलपति हुआ करते थे और वो नया गांव जबलपुर के बाहर एक जगह है, वहां रहते थे। उन्होंने पूछा तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा मैं वकालत करूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जाओ, दो घर के बाद ऑनरेबल जस्टिस जीपी सिंह रहते हैं, उनका आशीर्वाद लो। जीपी सिंह साहब, जब तक मैंने वकालत करी, जब भी पिताजी से मिलने जाता था, ऑनरेबल जस्टिस जीपी सिंह साहब, जिनको हम लोग प्यार से दाऊद साहब कहते थे, उनका आशीर्वाद लेने जाता था और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपके रीवा ने जीपी सिंह साहब के ही जूनियर जस्टिस जीएस वर्मा दिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। आपके यहां से जस्टिस आर.के. तनखा हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज थे, और उनका अगर असमय देहांत नहीं होता तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते। आपके यहां से कई विद्वान न्यायाधीश हमारे एडवोकेट जनरल बने, लिस्ट बहुत लंबी है, और बहुत बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स इस रीवा शहर से हमें मिले। रीवा का एक बड़ा सुंदर इतिहास है। आपकी ये जो बिल्डिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग, वो एस.सी. वर्मा जो चीफ इंजीनियर हैं, उनके मार्गदर्शन में कंप्लीट हुई है। एस.सी. वर्मा के मार्गदर्शन में जबलपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बना हुआ है। तो वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो जुडिशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनको बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं।
आपकी जो कलेक्टर है प्रतिभा पाल, वो कमिश्नर इंदौर हुआ करती थी और इंदौर पूरे भारतवर्ष में सबसे साफ शहर का दर्जा प्राप्त करता रहा है पिछले 8 सालों से। तो अब आपको एक ऐसा कलेक्टर मिला है जिसने इंदौर को संवारा है और जो अब रीवा को संवारेगा। रीवा के व्हाइट टाइगर्स बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ के लोग भी कोई टाइगर से कम नहीं है। यहाँ हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो, आपने बड़े बड़े विद्वान दिए हैं। मैं सबको विनम्रता से प्रणाम करता हूं। और जब मैं अंदर आ रहा था तो रीवा सैनिक स्कूल का बोर्ड देखा मैंने। मेरे पड़ोसी जनरल द्विवेदी जी हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया मैं रीवा सैनिक स्कूल से हूं। उनके 2 घर बाद नेवी के चीफ रहते हैं, उनसे एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं भी रीवा का हूं। तो रीवा के लोग आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं। मैं उम्मीद करता हूं भी के क्षेत्र में भी आपके यहां से नए नए उभरते हुए अधिवक्ता न्यायाधीश बनेंगे और मेरी सबको शुभकामनाएं। और नए भवन के लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाई देता हूं। थैंक यू एंड जय भारत। Thank you, my Lord. We are also honored with the presence of Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, our distinguished son of Madhya Pradesh, my Lord, graced the bench of Madhya Pradesh High Court in 2005, later serving as Chief Justice of Andhra Pradesh and Sikkim High Courts before his elevation to the Supreme Court of India in 2021. Now it is my honor to request my Lord Honorable Chief Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, to bless us with his kind words. आज के इस गरिमामय समारोह में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का रीवा से जरा विशेष लगाव है। उनकी ससुराल भी यहीं पे है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, यहाँ जो भी है वो सब पूरा होगा। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ब्रदर जस्टिस सतीश शर्मा, ब्रदर जस्टिस सुरेश कुमार कैथ, संजीव सचदेवा, संजय द्विवेदी, विशाल मिश्रा, डेप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल, उपस्थित राजनीतिक प्रतिनिधि, रजिस्ट्रार जनरल मध्य प्रदेश एवं अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, सीनियर एडवोकेट, बार काउंसिल के सदस्यगण, समस्त अधिवक्तागण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों बहनों, आज की बिल्डिंग देख के और ये सब देख के मुझे आपकी तरफ से बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। 2 लाइनों में अपनी बात कह देता हूँ। तरक्की देख के अपनी मुझे लगता है खुदा भी मुझ पर मेहरबान होना चाहता है, और आप लोगों के ऊपर चीफ मिनिस्टर मोहन यादव वैसे ही मेहरबान है और आप चाहें तो हो जाएंगे। दूसरी मेहरबानी चाहिए जस्टिस सूर्यकांत साहब से। सुरेश जी ने बिल्कुल सही बात कही। पेंडेंसी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो लगभग 5 लाख को टच कर रही है, और जब मैं जज बना था 2005 में, जब 53 की स्ट्रेंथ थी, उस समय यहाँ की पेंडेंसी 1,88,000 थी। तो ये इशू बहुत कंसिडरेशन का है, अदरवाइज यहाँ की पेंडेंसी इंक्रीज रहेगी। मित्रों, संजीव सचदेवा जी ने यहाँ की हाई कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश हुई उसके बारे में बताया। मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ आप सबको।
रीवा एक ऐसा स्थान था जहां पर महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 तरह के न्यायालयों की स्थापना की। एक था मिताक्षरा न्यायालय और दूसरा था धर्मसभा। मिताक्षरा न्यायालय हिंदू लॉ और उनके अनुसार न्याय करता था, और धर्मसभा जो थी वहां पर रिलीजियस बिंदुओं पर डिस्कशन के बाद न्याय किया जाता था। तो एक यूनिक सिस्टम यहां से चला, और फिर वो हाईकोर्ट बना। हाईकोर्ट के बाद जब संविधान बना हमारा, तब यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हुई। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज जैसा दिख रहा है, जब ये प्लान बन रहा था तो उस समय एक परिकल्पना थी हाईकोर्ट की कि यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने वो यहां का जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर का समावेश इस बिल्डिंग में हो। तो ये बिल्डिंग उन लोगों के लिए है जिनके लिए कहा जाता है कि दीन सबनी को लखते हैं, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे दीन बंधु समो। तो जो उनके लिए बिल्डिंग थी, तब ये ऐसा विचार आया और तब ये प्लान तैयार किया गया था। इनिशियली इसमें 3 स्टोरी थी, बाद में 4 स्टोरी हुई हैं। तो ये एक प्रक्रिया थी। अब मेरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं हमेशा करता हूं कि क्या कोर्ट बन गया रेत मिट्टी गारे से, क्या ये पर्याप्त है? क्या ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए यहां से हो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो जाएगा? नहीं हो सकता। मैं आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जो मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूं। मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी बात कर सकता हूं। आपका शरीर अच्छा हो, सुदृढ़ हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस शरीर के व्यक्ति हैं उस व्यक्ति में कुछ आवश्यक गुण जरूरी हैं, और जब तक वो गुण ना हो तब तक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये न्यायालय की जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग ना रहे, ये लगे कि न्याय व्यवस्था है। इसके लिए कुछ करना होगा। और जब हम न्याय व्यवस्था और व्यक्ति में गुण भी है, सुदृढ़ व्यक्ति है, तो न्याय व्यवस्था में एक चीज और जरूरी है, और वो है हमारी विनम्रता और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार। ये 3 गुणों का समावेश हमारे जो डिस्पेंसेशन के पार्ट हैं यदि सभी में होगा तो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक एग्जाम्पल देके बहुत जल्दी अपना स्थान लूंगा। न्यायालय को बोला जाता है न्याय का आलय, और मंदिर होता है उसको देवालय बोला जाता है। देवालय में लॉर्ड बैठता है और इसमें न्यायालय में माई लॉर्ड बैठता है, जिसका आप केस डिसाइड करते हैं। माई लॉर्ड है वो, लॉर्ड नहीं, लेकिन वो आपको लॉर्ड का स्थान दे रहा है। आप अपने जैसे दूसरे व्यक्ति का फेट एंड फॉर्चून डिसाइड करते हैं। जब आप फेट एंड फॉर्चून डिसाइड करने का आपको पावर दिया है, इसका मतलब जानते हैं ये किसने दिया? अन्यथा आप किसी को फांसी की सजा नहीं दे सकते जज के अलावा। ये आपको दैवीय कृत्य है, और इस दैवीय कृत्य के लिए जो आपको माय लॉर्ड बोला जा रहा है, लॉर्ड की जगह, आपको उसका ध्यान इन 3 गुणों के समावेश के साथ करना अत्यंत आवश्यक है। और तब मैं ये मानता हूं कि न्यायालय कहलाएगा। और आज ये बिल्डिंग जो बनी है, इस बिल्डिंग में जो कुछ भी है, इसको हमको 3 चीजों के साथ समावेश करना होगा। वह है करुणा, विवेक और न्याय। तब इसकी आत्मा इसमें जागृत होगी।
मानते हैं कि ये हो भी गया। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि न्यायालय वो जगह है जहां लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र है, और उसके लिए लोग सोचते हैं कि मसला ये नहीं कि दर्द कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह किसको है, और वो परवाह हमारे न्यायालयों को है, और इसीलिए लोगों का आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुए हैं। मैं इसी क्रम में दो बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि जो न्यायालय के लिए जो माना जाता है, जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, वो है स्वास्थ्य प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीषाभ गो ब्रह्मेषु फलमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। मतलब पृथ्वी और प्रजा का परिपालन हो, सबका मंगल हो, सभी लोग सुखी हों, राजा न्याय मार्ग से यह सब करे एवं न्याय के मार्ग से सबका कल्याण हो और लोग सुखी हों। यही परिकल्पना इस न्यायालय के माध्यम से हम सब आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से जजेज उपस्थित होकर आए हैं। ये भावना हम आज इस रीवा की जनता के लिए करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम इस न्यायालय के माध्यम से हम अपना काम करेंगे और आप सबको न्याय प्राप्त होगा, क्योंकि ये न्यायालय कहता है मैं नए अहद की तहकीक हूँ, तकलीफ नहीं। नए अहद की तहकीक हूँ, तकलीफ नहीं। राज की तरह किताबों में छुपा होता हूँ, अपने जज्बातों पर रखता हूँ मुकम्मल काबू। मैं किसी बात पर मुश्किल से फिदा होता हूँ, बायस नहीं होते, न किसी की तरफ जाते हैं। और ऐसा डिस्पेंसेशन यदि इस रीवा की हिस्ट्री को देखते हुए हम सब लोग करेंगे, तो आज ये न्याय का मंदिर जो यहाँ बना हुआ है ये सार्थक होगा। और इनके सब के लिए आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। Thank you, my lord. We are deeply honored with the presence of the esteemed Honorable Shri Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, who is youngest Advocate General, that too, who served for the longest tenure. A highly respected and accomplished jurist, began his distinguished judicial career as a judge of Punjab and Haryana High Court in 2004. He later served as the Chief Justice of the Himachal Pradesh High Court before being elevated to the Supreme Court in 2019. Justice Suryakant is known for his landmark judgments, including his contributions in Jitendra Singh versus Ministry of Environment and others, wherein it was held that schemes that extinguish local water bodies even with alternatives violates Article 21 of Constitution. Now it is my honor to request my Lord Honorable Shri Justice Suryakant, Judge Supreme Court of India, to bless us with his kind words. मध्य प्रदेश के शिक्षाविद एवं विद्वान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सुप्रीम कोर्ट में मेरे दो भाई जो मध्य प्रदेश की मिट्टी से संबंध रखते हैं, माननीय न्यायमूर्ति J.K. महेश्वरी जी, माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैथ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस संजीव सचदेवा जी, जस्टिस द्विवेदी, जस्टिस विशाल मिश्रा एवं अन्य जज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंध रखते हैं जो इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल साहब, रजिस्ट्रार जनरल व दूसरे हाई कोर्ट के ऑफिसर्स जो यहाँ पर पधारे हैं, रीवा सेशन डिवीजन के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एवं दूसरे न्यायिक अधिकारीगण, रीवा बार एसोसिएशन के प्रधान एवं अन्य पदाधिकारीगण, मध्य प्रदेश बार काउंसिल के आए सदस्यगण, रीवा बार के मेंबर्स, एडवोकेट साहिबान, रीवा क्षेत्र से आए देवी और सज्जनों, और विशेष रूप से मैं देख रहा हूं महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हमारी कुछ यंग एडवोकेट्स यहां पर मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूं। मीडिया के साथीगण, आप सबको मैं आज ये रीवा में जो बहुत बड़ा जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, उसकी बधाई देने से पहले मैं क्षमा याचना चाहूंगा कि हम लोग लेट हो गए। जबलपुर में कुछ कार्यक्रम थे, हमारे पूरे प्रयास के बावजूद हम समय पर यहाँ नहीं पहुंच सके। आप लोगों को इस गर्मी के मौसम में इंतजार करना पड़ा, पर मुझे लगा कि मुझे जो आने में लेट होने का जो दुख था, जब मैंने यहाँ का नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स देखा तो मुझे एक बहुत ही प्रसन्नता, गौरव का विषय और आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी भावना मेरे अंदर पैदा हुई। मैं आप सबको उसके लिए बधाई देता हूं। 35,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में 40 कोर्ट रूम्स के साथ मैंने जब साइट प्लान को देखा तो उसमें पाया कि जो जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सब सुविधाओं से इसमें उनका प्रावधान किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम भी अगले 40-50 वर्ष की जो रिक्वायरमेंट इस क्षेत्र में होगी, उनकी संभावनाओं को भी मद्देनजर रखा गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। मुझे बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने हैं। मैं इसके लिए जुडिशरी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये अपील भी करूंगा कि जहां पर भी अभी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बना है, उसके लिए भी वो अपने एनुअल बजट में उसका प्रावधान करें। केंद्रीय सरकार से भी उसमें एक मैचिंग ग्रांट मिलता है, उसका भी प्रदेश सदुपयोग करे और नए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपके सभी जिला स्तर पर और सब डिवीजन लेवल पर अगर बन जाएं तो ये देश के लिए बहुत बड़ी एक गौरव की बात होगी। जस्टिस महेश्वरी ने आपको बताया कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स एक बिल्डिंग बनाने से ही हम सबको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो मानवीय मूल्य हैं उनका जागृत होना और उनका हमारी न्याय प्रणाली में शामिल होना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस बारे में अक्सर जो जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी तुलना एक अस्पताल से करता हूं और उसका इसलिए करता हूं कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स को एयर कंडीशन रूम देने के लिए नहीं है, एडवोकेट साहिबान को बहुत ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटी अकेले देने के लिए नहीं है, बल्कि एक अच्छा कोर्ट कॉम्प्लेक्स वो उस आदमी, उस न्याय की तलाश में भटक रहे कंज्यूमर ऑफ जस्टिस के लिए है जो हमारे पास न्याय की दुआएं लेकर के आता है। अस्पताल में अगर एक मरीज जाएगा तो आप देखेंगे आमतौर पर 3 किस्म के मरीज होते हैं। वो जिसको एक फर्स्ट एड की जरूरत है, वो मरहम पट्टी कराएगा, दवाई लेगा, चला जाएगा।
ऐसा कोई छुटपुट मुकदमे वाला कोई आदमी आता है, उसको बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी में नहीं रहना पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुर्भाग्यवश ट्रॉमा सेंटर में जाना पड़ता है। एक्सीडेंट के केस में जैसे कोई किसी को चोट आई तो वो लोग जाते हैं। आप देखेंगे गहराई से तो जो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है उसकी भी इसी किस्म की स्थिति होती है। अगर वो आपके इस न्यायिक अस्पताल में आया, आपने उसको एक अच्छा बैठने का, पानी पीने का, बेसिक कम्युनिटीज की अगर उसको एक स्थान दे दिया, तो वो उसको सबसे पहला आश्वासन और एहसास होगा कि मैं ऐसी जगह आया हूं जहां मुझे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्स का सवाल आता है, उसमें बार की भूमिका है, उसमें हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स की भूमिका है, और उसके लिए आप सबको हमेशा हर ढंग से तत्पर रहना पड़ेगा, जिसमें लीगल एजुकेशन, मानवीय मूल्य, आपका पैशन, आपका कंपैशन, आपकी एम्पैथी, ये सारे एलिमेंट जो चाहिए सिस्टम में, वो हम सब में पीरियोडिकल ट्रेनिंग करवा करके, चाहे वो हमारे जुडिशियल ऑफिसर हैं या बार के सदस्य हैं, उन सब के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा करें। एक बहुत बड़ा दूसरा कारण जो मैं अच्छे जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए मैं हमेशा हर सरकार से जहां मैं जाता हूं तो अपील करता हूं, उसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोई भी प्रगतिशील देश जिसको अपनी आगे की मंजिलें छूनी है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जब तक बाहर के निवासियों को, जो बाहर का बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बाहर का बिजनेसमैन है, किसी दूसरे देश का, विदेश का, जब तक उसको ये विश्वास नहीं होगा कि जो इस देश में वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, उसको कोई खतरा नहीं है, जब तक उसको ये विश्वास नहीं होगा कि इस देश में रूल ऑफ लॉ का महत्व है, और ये कंट्री चाहे कोई भी ऑर्गन है वो सब कानून की, संविधान की और नियम कायदे का सम्मान करते हैं, जब उसको ये विश्वास हो जाता है तो वो खुले दिल से आकर के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेगा। हमारा देश ह्यूमन रिसोर्स एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है। ऐसे देश को इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। अगर इंडस्ट्रीज आएंगी, दूसरा सर्विस सेक्टर जब यहाँ पे आएगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, उसी से लोगों को हमारे रोजगार मिलेगा, उसी से हमारे जितनी भी इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, टेक्निकल है, लॉ के हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तभी उनके जो हमारे नए युवा लोग जो वहां से पढ़ करके निकलेंगे, उन सबको हमें एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये जरूरी है कि ऐसा माहौल इस देश में क्रिएट किया जाए। और उसमें मैं बधाई दूंगा सरकार का, जिस ढंग से जस्टिस महेश्वरी ने बताया कि हर कदम पर सरकार का इसमें आर्थिक सहयोग मिलता रहा है, और मुझे पूरी आशा है कि वो भविष्य में भी मिलता रहेगा। बाहर के लोगों से भी मैं प्रार्थना करूंगा, आप ये मत ध्यान रखिएगा कि जब हम प्रगतिशील भारत की बात करते हैं तो बाहर के देशों से कल को यहाँ एडवोकेट्स भी आएंगे, इन्हीं कोर्ट्स में आकर के उन्होंने आपके साथ, आपके कंपटीशन में आकर के शायद वो आर्गुमेंट्स भी करें। हमारा देश और हमारी जुडिशरी टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमारी जो जुडिशरी है, मुझे सौभाग्य मिला है पिछले कुछ 2 साल में मैंने देश की जुडिशरी को रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में चीफ जस्टिस ऑफ अलग दूसरे देशों के हैं, उनकी मीटिंग्स में मैं गया हूं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो हमारी जुडिशरी है उसका सारी दुनिया में चर्चा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हमने किया है उसकी बहुत सारे सदुपयोगों में यह भी है कि मध्य प्रदेश के किसी कोने में बैठा एक वकील साहिबान जबलपुर में, इंदौर में या ग्वालियर की बेंच में अपना केस फाइल करके वहीं बैठ करके वो आर्गू कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी वहीं बैठ करके केस फाइल कर सकता है और बहस भी कर सकता है।
तो हमने एक बहुत अच्छी एक्सेस टू जस्टिस, अफोर्डेबिलिटी टू जस्टिस, लोअर कॉस्ट फॉर दी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, हमने कई प्रिंसिपल्स पर बहुत सफलता प्राप्त की है। उसका एडवांटेज हमें याद रखना चाहिए। धीरे धीरे समय आएगा कि बाहर की जो जुडिशियल सिस्टम है, बाहर के जो बार हैं, वो भी उसका एडवांटेज लेंगे। तो वो टाइम बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, अभी भी है हमारे सामने। तो अक्सर डेली होता है कि यूके में बैठ करके, कहीं और से बैठ करके वकील साहिबान बहस करते हैं। तो हमें इस चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका समाधान ये नहीं है कि हम ये बोलें कि जी बाहर के लोग क्यों आएंगे। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तो बाहर के एडवोकेट्स भी आ सकता है, बाहर से दूसरे लोग आपके सिस्टम को में पार्टिसिपेट करने के लिए आ सकते हैं। आपको इस चैलेंज को दूसरे ढंग से लेना है। कैसे लेना है? आपको उनके बराबर की कॉम्पिटेंस लेवल को बढ़ाना है। और उसके लिए मैं बार काउंसिल से ये आह्वान करूंगा कि आपकी पीरियोडिकल ट्रेनिंग, आपकी अपडेशन, और आपको एक देखिए, क्राइम और कॉमर्स की कोई ज्योग्राफी नहीं है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। तो इसलिए हम अकेले अपने लोकल लॉज के ही उस पर नहीं बैठ सकते। तो हमें एक वर्ल्ड वाइड जुडिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बाहर के कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, किस ढंग से कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम वहां पर काम कर रहा है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि रीवा के एडवोकेट्स भी यहां बैठ करके उसके लिए मेंटली, प्रोफेशनली और आप तैयार रहें। और जब भी कभी आपके सामने चैलेंज आए तो हमें इस बात का गर्व हो कि रीवा बार में ऐसे एडवोकेट्स हैं, यंग लोग हैं, जिन्होंने बाहर के लॉयर्स के साथ आर्गू करके, compete करके अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेबिलिटी साबित की है। तो ये तब होगा जब हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे कि हमने ऐसे चैलेंजेस को भविष्य में देखना है और उनके सामने उन चैलेंजेस को हमें स्वीकार करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि देश की जुडिशरी, पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, जो ग्रास रूट लेवल पर, जो जमीन पर जो हमारे कंज्यूमर ऑफ जस्टिस है, जो न्याय का हमारा प्रथम जो जिसका स्थान है वो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहां पर उसको एक अच्छा माहौल मिले। हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स एक बहुत स्नेह से, एक भावात्मक तरीके से, एक मान सम्मान के तरीके से उस कंज्यूमर ऑफ जस्टिस को स्वीकारें। बार उसको बहुत अच्छी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान करके उसकी सहायता करे। ऐसा माहौल बने और आप उसमें देश के लीडर हों, आपको एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश करें। इन आशाओं के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया और ये आपसे मेरे अपने विचार शेयर करने के लिए, आपसे बातचीत करने का आपने अवसर प्रदान किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, my Lord, for such a captivating and inspiring address. Moving on, we are privileged and gratified by the presence of Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable the Chief Minister of Madhya Pradesh, who is a seasoned leader and academician with a background in law. I feel immense proud and privileged to request Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable the Chief Minister, to address the august gathering. रीवा जिला न्यायालय के नए भवन के लोकार्पण के अवसर पर आज रीवा नहीं मध्य प्रदेश गौरवान्वित है। दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन न्यायालय के मंदिर के न्यायमूर्ति मान्यवर सूर्यकांत जी, मान्यवर माहेश्वरी जी, मान्यवर शर्मा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे बीच पधारे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर। यह हमारा सौभाग्य है। आज इतना बड़ा भव्य भवन अगर लोकार्पित हो रहा है तो उतना ही समृद्ध मंच हमारे बीच उपलब्ध है, जिनके माध्यम से दुनिया हमारी तरफ, ये जो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती में न्यायालय ने अपनी भूमिका जो अदा की है। मैं पहले हमारे यहाँ के राज्य के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति केत साहब को बधाई देना चाहूंगा। हम हमारे बीच आपके
संक्षिप्त कार्यकाल में कई सारे कामों को तेज गति से अपनी युक्ति बुद्धि से कैसे भी करके कराने में समर्थ भी है और सामर्थ्यशाली भी है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं माननीय सुरेश कैद जी, हमारे विद्वान न्यायाधीश और प्रशासनिक दृष्टि से जुडिशरी में अपनी अच्छी भूमिका, और मेरे अभिन्न एक तरह से मित्र के नाते से माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी जी, माननीय न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा जी, माननीय एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, आप पूरे मंच का अभिनंदन कर दे, और मेरे साथ मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस मंच के सामने बैठे सभी माननीय सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, इस अवसर पर सभी अभिभाषकगण, आप सबका इस नए खास करके न्याय के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जिला न्यायालय स्तर पर, ये माननीय सचदेवा साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत ने वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूंगा। आज इतिहास ने करवट बदली है। न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है, ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहूंगा। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है, और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर अपन देखें, काल के प्रवाह में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा, जिनके कई सारे प्रसंग, और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे ही वो न्याय के सिंहासन पे बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई है, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई थी, और देश को, पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पे बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ है कि शकों की राजकुमारी, घटनाक्रम ऐसा घटा का उनका विवाह हो चुका है, और जब वो अपने राज सिंहासन पे बैठते हैं, तब 3 क्षत्रप, उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा और एक उज्जैनी की धरती पर, वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया, और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा, महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों शकों के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल, निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए, उनके अपराध भी इनके सामने हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है, महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूं। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इनने जो अन्याय किया है, इनने आतंकवाद फैलाया है, आपराधिक कृत्य किया है, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश
दंडित देखना चाहता, कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। और इसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का, सालों का प्राणांत करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारी विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार ने विक्रमादित्य को लेकर के उनके सभी पक्ष, वैसे तो विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कितने प्रकार के गुण हैं, लेकिन खास करके चूंकि न्याय की बहुत उत्कृष्ट परंपरा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से ऐसे हम इस संबंध में हमने तो वैसे रिसर्च सेंटर भी बनाया है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। लेकिन मान के चलेंगे विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा राज्य की सीमाओं से आगे बढ़ करके देश में भी पुनर्स्थापित होना चाहिए, तो आपका मार्गदर्शन भी चाहिएंगे और उस संबंध में कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपका भी हम लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन जब मैं अपनी इस तरफ देखता हूं, जब जिला न्यायालय के लोकार्पण की बात करता हूं, तो एक उदाहरण मेरे सामने और ध्यान में आता है। हमारा अपना एक तो ये गौरवशाली हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का, सच मानो जैसे देश की आजादी 47 में मिली है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होते दिखाई दे रहा है, तो हमारे राज्य और राष्ट्र के अंदर की व्यवस्था में भी न्याय के प्रति क्या भावना है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, भिंड जिले का एक छोटे गांव के अंदर एक थानेदार निकल के जा रहे हैं और दो पड़ोसी लड़ते लड़ते कई बार थाने पे पहुंच चुके हैं, कई बार मुकदमे भी बने, कई बार समझाइश देके भेज दिए। ये घटना थानेदार को मालूम है तो पहचानने लग गए। एक बार वो सामने से जा रहा है तो बैंड बाजे बज रहे, बस तैयार है, और देखा कि वो जो दो लोग लड़ रहे थे आपस में, वो उसमें से दोनों के दोनों बारात में जाते दिखाई दे रहे। एक की बारात दूसरा खड़ा दिखाई दिया। थानेदार को समझ में नहीं आया। थानेदार ने इधर बुलाओ, जरा पास में बुलाया कि भाई क्या हो रहा है, तो बोले ये मेरे पड़ोसी के आज बेटे की विवाह है तो मैं बारात में जा रहा हूं। तो उसने कहा यार तुम रोज तो लड़ते रहते थाने पे, हम परेशान रहते, तुम्हारे झगड़े, तो तुम क्या चक्कर में इसके बारात में कैसे जा रहे हो। तो उसने जो जवाब दिया वो हमारी इस सनातन धर्म की, हमारी जो परिवार कुटुंब परंपरा है, हमारी जीवन शैली, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने कहा थानेदार साहब आप कहां तक पढ़े हो। तो थानेदार ने कहा तू मेरे से पढ़ाई पूछ रहा है, मैं तेरे को बताऊं भी क्या पढ़ाई है, सीधी बात पूछ रहा, जवाब दे कि तू इसकी बारात में कैसे जा रहा है। तो उसने कहा साहब मैं आप पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूं, पता नहीं कौन सी जमाने की आपकी पढ़ाई है, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, मैं तो अपनी बात बताता हूं कि हमारे गांव के अंदर भले आपस में कितने भी लड़े, लेकिन बाहर बारात जाना है, कोई कार्यक्रम करना, तो हम इकट्ठे हो जाते। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, ये हमारे लिए ये क्षण महत्व का है। ये हमारी पुरानी प्राचीन ग्रामीण संस्कृति है, जिसके आधार पर हमारे परस्पर प्रेम और ये सारे चीजों का उसी प्रकार का भाव है। इसीलिए मैं न्यायालय को और भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के दौर में कुछ उदाहरण हमारे सामने आते हैं, न्याय करें और न्याय करने में न्याय की देवी पे आंख पे पट्टी बंधे, तो हमें तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मुझे इस बात का गर्व है, तीनों न्यायमूर्ति यहाँ बैठे हैं, आपके समय वो आंख की पट्टी खोलने का और अतीत की जड़ों से जोड़ने का काम भी हमारे सामने यशस्वी प्रधानमंत्री के नए कानूनों के बाद हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और कारण से भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जुडिशरी के एक पुराना खराब निर्णय, हमारे लिए तो वो पवित्र निर्णय था, लेकिन खराब निर्णय नहीं बोल सकते, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप निर्णय तो बहुत पवित्र था, लेकिन बात के क्रम में आपातकाल, ये हमारे लिए लोकतंत्र का एक काला पृष्ठ जुड़ा, जिसके आधार पर पता नहीं क्या क्या माना गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस पवित्रता के बलबूते पर 3 तलाक का फैसला देकर के न्यायालय की गरिमा बढ़ाने का काम किया। इस आधार पर कि इतने बड़े पैने पे माता बहनों के लिए केवल 3 शब्द बोल करके तलाक तलाक करके तलाक नहीं दिया जा सकता, ये हमारे उस समय की सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम अपनी अवस्था थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता, चलो उस समय हमारा प्रजातंत्र थोड़ा कमजोर था,
वोट के चक्कर में कुछ भी कारण से उस इतने अच्छे पवित्र फैसले को लोकसभा के माध्यम से कानून बनाकर बदला गया, लेकिन देश के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उसको देश ने बर्दाश्त किया। लेकिन आज इसलिए और देश भी आगे बढ़ा, लोकतंत्र भी मजबूत हुआ जब भगवान राम का अयोध्या वाला 500 साल पुराना फैसला हुआ। तो मैं 3 कारण से इसकी आपको भी धन्यवाद देता हूं, समाज में भी न्यायालय के प्रति जो भाव है वो भी बताना चाहता हूं, और शासन के सत्ता सूत्र जिनके पास है उनको भी उस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला धन्यवाद तो ये फैसला देना, ये बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। इतना पुराना उलझा सुलझा, इतने प्रकार से क्या नहीं, पता नहीं कितनी कल्पना की गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी मर्यादा में रह करके जो न्याय दूध का दूध पानी का पानी किया, उसने सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा गौरव दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से प्रकट किया। दूसरा घटनाक्रम, जो वादी है, फरियादी है, उनके बीच का प्रकरण चला था जब 47 से, और उसने भी भाई ने कहा था, वो मुस्लिम धर्म का था, कि अगर केवल न्यायालय फैसला कर दे तो मैं मान लूंगा। इसलिए उसने अपने उस फैसले को मान करके सच्चे अर्थों में न्यायालय के बाद वो स्वयं भूमि पूजन के अवसर पर वहां उपस्थित हुआ, वहां फिर न्यायालय की महत्ता स्थापित हुई, हमारे दिलों के अंदर ये गहराई स्थापित इस तरह से अंदर तक गई। और तीसरा धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में सरकार ने 84 में जो हुआ उसके उलट जो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, सरकार को लागू कराने के जो सामर्थ्य चाहिए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, पूरे देश ने स्वागत किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सरकार ने सारी सुव्यवस्था स्थापित की, और उस न्यायालय के फैसले के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री भूमि पूजन में भी बैठे और लोकार्पण के समय भी गए। ये वास्तव में हमारे देश के उस स्वर्णिम अध्याय में से एक घटनाक्रम जुड़ता है। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में आपने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए आपने कार्यक्रम में देरी से आने की क्षमा मांगी, मैं भी क्षमा चाहता हूं। लेकिन यहाँ के इस पूरे कार्यक्रम में जिस प्रकार का रीवा का गौरवशाली अतीत है, मुझे इस बात के लिए बताने में कोई संकोच नहीं है। यहीं से थोड़ी दूर पर चित्रकूट में अयोध्या से भगवान वनवास के लिए भले ही बढ़े हैं, लेकिन मध्य प्रदेश वो धरती है जिनने 11 साल उनके साथ समय गुजारा, इस चित्रकूट धाम को लौकिक अलौकिक रूप से धन्य किया। वो दिव्य धाम इसी रीवा अंचल में है। मैं आपसे आज के इस अवसर पर भगवान राम के राम राज्य के काल के आधार पर ही तो पूरा देश अपनी सभी धाराओं को प्रभावित करते हुए उस सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। मैं अपने न्यायालय के इस नवीन भवन के अवसर पर हृदय से आभार भी मानता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके बार बार मिलते रहेंगे। आपका हमारा साथ अपने इस न्यायालय के इतिहास में बार बार जुड़ता रहे। हमारी नई प्रकार की सुविधाओं के बलबूते पर नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार अपने दायरे में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जो सबसे तेजी से सभी प्रकार के सुधार करते हुए जो मूल भावना है सरकार की और न्यायालय की, उसमें समर्थ हो, ऐसी भावना के साथ हम चल रहे हैं। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable, for enlightening us. Before proceeding further, we would like to take a pause to felicitate honorable dignitaries by presenting a memento as a token of our regard. For this, I humbly request respected Shri Dharminder Singh, Registrar General, and Shri Rakesh Mohan Pradhan, Principal District and Sessions Judge Rewa, to kindly felicitate Dr. Shri Mohan Yadav, Honorable the Chief Minister, State of Madhya Pradesh, by presenting a memento as a gesture of our reverence and gratitude. Thank you very much, sir. Now I request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, by offering a memento in honor of his distinguished presence.
Sincere thanks, sir. Again, I request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice J.K. Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, by presenting a memento as a token of our sincere regard. Thank you, sir. I now request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice S.C. Sharma, Judge, Supreme Court of India, by presenting a memento as a symbol of our collective respect. Thank you, sir. Again, I request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaith, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a memento as a gesture of our reverence and gratitude. Thank you, sir. I now request sir to kindly felicitate Shri Rajendra Shukla, Honorable Deputy Chief Minister, by presenting a memento as a token of our sincere regard. Thank you, sir. Again, I request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a memento as a gesture of our reverence and gratitude. Thank you, sir. I now request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice Sanjay Dwivedi, Judge, High Court of Madhya Pradesh, and Portfolio Judge Rewa, by presenting a memento as a gesture of our reverence and gratitude. Thank you, sir. I now request sir to kindly felicitate my Lord Honorable Shri Justice Vishal Mishra, Judge, High Court of Madhya Pradesh, by presenting a memento as a token of our sincere regard. Thank you, sir. Again, I request sir to kindly felicitate Shri Prashant Singh, Advocate General, State of Madhya Pradesh, by presenting a memento as a symbol of our collective respect. Thank you, sir. Lastly, to add a golden feather to the cap, we would like to request my Lord Honorable Shri Justice Vishal Mishra, Judge, High Court of Madhya Pradesh, to kindly propose vote of thanks. Honorable Dr. Mohan Yadav, Chief Minister, State of Madhya Pradesh, Honorable Shri Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Jiten Kumar Maheshwari, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Satinsha Sharma, Judge, Supreme Court of India, Honorable Shri Justice Suresh Kumar Kaith, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Honorable Shri Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, Honorable Shri Justice Sanjay Dwivedi, Judge, High Court of Madhya Pradesh, Shri Rajendra Shukla ji, Deputy Chief Minister, Government of Madhya Pradesh, Shri Prashant Singh, Advocate General, State of Madhya Pradesh, Principal and District Judge, District Rewa, and other judicial officers, senior advocates, all other dignitaries present here, members from print and media, ladies and gentlemen. A very good evening to you all and warm greetings. On behalf of the entire judicial fraternity and all stakeholders present here today, it is my honor and privilege to extend heartfelt vote of thanks on this momentous occasion marking the inauguration of the new district court complex at Rewa. At the outset, I extend heartfelt gratitude to Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister, State of Madhya Pradesh, whose leadership and support have been central to the realization of this long-awaited project. The presence of Honorable Chief Minister today reflects the government's commitment
to augment the judicial infrastructure and promote institutional development. We are deeply honored by the presence of Honorable Shri Justice Suryakant, Judge Supreme Court of India. Your esteemed presence has been a crowning glory to the function, gives motivation to pursue justice with unrelenting dedication and excellence. Your pearls of wisdom and guiding hands have been a lighthouse in the excellence. The deep commitment to the constitutional ideas and clarity of the judicial thoughts continue to inspire all who serve the cause of justice. We are thankful to your Lordship for sparing your valuable time. Thank you, Lordship. Our special thanks to the Honorable Shri Justice Jiten Kumar Maheshwari, Judge Supreme Court of India. His Lordship's contribution to our judicial system at various levels is a matter of great pride and significance. The association with this event lends it a special meaning for the judicial fraternity in state of Madhya Pradesh. We deeply acknowledge the hectic schedule which my Lord has and are extremely thankful to His Lordship for devoting time to us and enlightening us with the profound thoughts. Your belief is our mission means a lot to us. Thank you, Lordship. We are equally grateful to Honorable Shri Justice Sateen Chand Sharma, Judge Supreme Court of India. His Lordship's gracious presence on this occasion reinforces the bond shared between the Supreme Court and the judicial institutions across the states. Your participation reaffirms the judiciary's collective commitment to enhancing the delivery of justice and improving the infrastructure that supports it. We extend our heartfelt gratitude to your Lordship for sparing your valuable time, showing your magnanimous dedication in the expansion and modernization of the judicial infrastructure. Thank you, Lordship. Our sincere thanks to Honorable Shri Justice Suresh Kumar Keth, Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh. As the head of the judiciary in our state, your Lordship and a vision has been instrumental in shaping the judiciary into a beacon of hope for the common man. Your commitment to justice, your tireless efforts to uphold the Constitution have been the source of inspiration for all of us. Your Lordship's kindness and magnanimity were evident from the very first day, as your Lordship has shown keen interest in not only the academic upliftment of the judiciary in the state of Madhya Pradesh, but also being an instrumental in uplifting and modernizing the infrastructure of judiciary in the state of Madhya Pradesh. The work of the project is done under the supervision and guidance of the Honorable Chief Justice. The proactive and the visionary approach adopted under the leadership of the Honorable Chief Justice have been vital in enhancing judicial infrastructure throughout the state. The realization of this project stands a testament to that vision. Thank you, Lordship. Our special word of appreciation is extended to Honorable Deputy Chief Minister Rajen Shukla. The personal interest, timely support, continuous involvement is demonstrated in the completion of this project. The commitment to the progress of REWA is reflected in this meaningful addition to the city's civic and legal landscape. We are thankful to Honorable Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh. The consistent oversight, administrative acumen, and valuable guidance have ensured the structured execution and completion of this complex. We are extremely thankful to your Lordship for sparing your valuable time for attending this inaugural function of the new District Court Complex, District REWA. Thank you, Lordship. Our gratitude also goes to Honorable Shri Justice Sanjay Dwivedi, Portfolio Judge, District REWA, whose meticulous supervision and keen attention to both functional and aesthetic aspects of the project have contributed immensely to the creation of this model court complex. Acknowledgement is due to Shri Prashant Singh, Advocate General, State of Madhya Pradesh, for his continuing support, meaningful collaboration in strengthening the justice delivery system for the State of Madhya Pradesh. We are thankful to the State Bar Council members, Shri Shivendra Upadhyay and Shri Akhand Pratap Singh, the President of Bar Association of District REWA, Shri Rajen Pandey, and the members of the Bar, for ensuring the expectations of the Bar were well integrated into the design and execution of this project. The efforts of Registrar General Shri Dharmendra Singh Rathod and other officers of the registry deserves due mention for this effective coordination and administrative support throughout the execution of this project. I also extend appreciation to Shri Rakesh Mohan Pradhan, Principal District and Session Judge REWA, and other judicial officers of the district as well as former judicial officers who have immensely contributed in construction of this complex. The new District Court Complex at REWA is more
than just a building. It represents a renewed commitment to the accessible, inclusive, and effective justice. I place on record our gratitude to the government of Madhya Pradesh, especially the PIU, for executing this ambitious project, and to law enforcement and administrative authorities of REWA for their indispensable cooperation and support in making today's event a success. Because of paucity of time, I am unable to name everyone, but I must acknowledge the tireless works of all those involved in the construction of this court complex. Their steadfast dedication, planning and supervision at every stage have been instrumental in turning this vision into a reality. As we stand before this new edifice of justice, we remain hopeful that this district court complex shall serve not just as a structure of brick and stone, but as a sanctuary of fairness, efficiency, and trust of every litigant who walks through its gates. May it uphold the dignity of law and rise to the noble cause of justice. I am also grateful to the members of the press and media for their presence, for helping to bring this today's achievement notice to the public at large. Above all, I offer my thanks to the Almighty for allowing us to witness this historic occasion, which I believe will mark a new chapter in the judicial history of the state, a chapter of better accessibility, dignity, efficiency in the justice delivery system. Once again, I extend my deepest thanks to all. Thank you all. Thank you, my Lord. Before proceeding towards the formal conclusion of the program, I request all dignitaries present here to rise for the national anthem. सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम यहाँ राष्ट्रगान करने जा रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। With the permission of the dais, may I declare the end of the program. Thank you all for your participation. We end this program with a prayer. आनो भद्राहा कृत्वो यंतु विश्वतः, अर्थात सभी दिशाओं से ऐसे विचारों की कामना करते हैं जो हमें प्रेरणा दें, मार्गदर्शन करें और हमारी चेतना को समृद्ध करें। थैंक यू। जय हिंद।